Hello friends, today we are here with our next lecture of acid, base and salts. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एसिड और बेस के सारे कंसेप्ट्स, अरेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट एंड लेविस कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि उनके अकॉर्डिंग एसिड्स कौन है और बेसिस कौन है. In this video we will discuss about the uses of acid, base and salts. Firstly we will talk about the uses of acids. These are the uses of acids. Mainly two types of acids we are used. They are mineral acids and organic acids. Because acids are edible in nature, the organic acids are edible, so they are called as organic acids. And the mineral acids like hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, these are the mineral acids. Firstly, we will talk about the uses of these mineral acids. First one is HCl. HCl is basically used in the cleaning of boilers insides. HCl का हम देख रहे हैं. It is used in cleaning of boilers inside and in the cleaning of sinks and many other sanitary items. Clear? So its main purpose is cleaning. Nextly we will talk about H2SO4, means sulfuric acid. Sulfuric acid is basically called as king of acids. Yes, this is the king of acids and it is mainly used in cells, batteries and in many factories. सेल्स एंड बैटरीज जो हम यूज करते हैं, यहाँ पे बायो वाला सेल नहीं है, ये जो सेल हम बैटरी यूज करते हैं, इसके अंदर हम इसमें किसका यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है बैटरीज वगैरह पे. थर्ड मिनरल एसिड इज नाइट्रिक एसिड. दिस नाइट्रिक एसिड इज मेनली यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स and in cleaning of gold and silver ornaments. Okay. Cleaning of gold and silver ornaments. Nitric acid is used as aqua regia. ठीक है, एक्वा रिजिया का यूज हम करते हैं गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए. नाउ व्हाट इज एक्वा रिजिया? एक्वा रिजिया हमारे पास टू एसिड्स का मिक्सचर है ना, टू एसिड्स का सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, टू कंसंट्रेटेड एसिड्स. ठीक है, जो कि हमारे पास किस रेशो में है, 1:2. 1 part of concentrated HNO3 means nitric acid and 3 parts of concentrated hydrochloric acid को मिलाकर जो हमारे पास बनता है, that is aqua regia. ठीक है, इसमें ये रेशियो फिक्स है, 1 part is concentrated nitric acid and 3 parts of concentrated HCl. इन दोनों को मिलाकर हम जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं, that is called as aqua regia, and this aqua regia is used for the cleaning of gold and silver ornaments. Clear? So these are the uses of mineral acids. जो हमारे पास organic acids या carbonic acids है, ठीक है, for example acetic acid, CH3COOH, it is acetic acid and this is commonly called as vinegar. This vinegar is mainly used in
very food items and especially in pickles and jams as preservatives. और बहुत सारे जो भी चाइनीज डिशेस हम बनाते हैं उन चाइनीज डिशेस में भी हमारे पास विनेगर का यूज होता है और एज अ प्रिजर्वेटिव भी हम इसका यूज करते हैं अपने पिकल्स और जैम्स बनाने के लिए। क्लियर? इसके अलावा एसिटिक एसिड का यूज हम वुडन फर्नीचर को क्लीन करने के लिए भी करते हैं। तो वुडन फर्नीचर क्लीनिंग के लिए भी हम एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। दिस इज द एडिबल एसिड। इसके अलावा आप देखते हो लेमन में प्रेजेंट है साइट्रिक एसिड, वो भी हम खाने के काम में लेते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड इन ऑरेंजेस, ऑक्सैलिक एसिड इन टमाटोज, मैलिक एसिड इन एप्पल। These acids are also edible acids which are used as food items. So these are all about the uses of acids. Nextly we will talk about the uses of bases. ठीक है, कुछ कॉमन बेसिस हैं हमारे पास। तो यूजेस ऑफ बेसिस, फर्स्टली हम देखते हैं जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बेस है दैट इज NaOH. NaOH means sodium hydroxide and it is mainly used in the preparation of soaps, detergents, and they are also used in paper and textile industries. क्लियर? पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज करते हैं हम। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज बेसिकली यूज्ड टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्टली वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgOH twice. It is commonly known as milk of magnesia and it is basically used as an antacid to remove the acidity of soil, acidity in stomach, not soil, remove the acidity in stomach. आपको पता है हमारे स्टमक में एक स्ट्रॉन्ग एसिड सिक्रीट होता है दैट इज HCl, और जब हमें एसिडिटी हो जाती है ना, काफी स्पाइसी फूड यदि हम खाते हैं या फास्ट फूड खाने से हमारे स्टमक में एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और जब हमें एसिडिटी होती है तो हम इनो का यूज करते हैं। इनो इज एक्ट एज एन एंटासिड। क्लियर? सो द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटासिड टू रिमूव द एसिडिटी इन द स्टमक। दीज आर द यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट बेसिस। Nextly we will talk about the uses of salts. ना कुछ salts के uses हम देखते हैं यहाँ पे। Uses of salts, कुछ important salts के uses और preparations of method, ये सारा हमें यहाँ डिटेल भी देखना है। तो यहाँ पे हम कुछ जो important salts हैं उसके uses देखने वाले हैं। तो uses of salts. Firstly, the first salt is calcium carbonate, that is CaCO3. CaCO3, it is a calcium carbonate and it is the important ingredient of lime. ना जो मार्बल स्टोन्स होते हैं उन मार्बल स्टोन्स के अंदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और मार्बल स्टोन्स का यूज हम किस लिए करते हैं? फॉर फ्लोरिंग। मार्बल स्टोन्स में ये प्रेजेंट है और इसका यूज हम किस लिए करते हैं? फ्लोरिंग के लिए करते हैं। ठीक है, जो हम फर्श बनाते हैं अपने हाउसेस में या कहीं भी, तो उस फ्लोरिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं।
इसका यूज हम एक और जगह करते हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन मेटलर्जी। ठीक है, तो इसका यूज हम एक और जगह कहां करते हैं, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर, जिसे हम कहते हैं मेटलर्जी। तो आयरन के ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी, और मेटलर्जी में हम कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। इसके अलावा इसका एक और यूज है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज हम करते हैं। सो दिस इज अबाउट द कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज silver nitrate. Silver nitrate is a salt of silver that is AgNO3 and it is specially used in black and white photography. ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक फिल्म्स जो हम बनाते हैं, जो फोटोग्राफी होती है, उस फोटोग्राफी के अंदर AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है ना। पहले आप देखते हो, पहले हम जो कैमराज हमारे पास आते थे उसमें एक रील होती थी और फोटोज खींच के उस रील को हम साफ करवाते थे वॉश आउट करवाने के बाद। ठीक है, तो वो जो वॉशिंग की प्रोसेस होती थी उन रील्स को, वो सिल्वर नाइट्रेट से होती है। उससे जो फोटोग्राफिक फिल्म है, जो फोटोज है, वो हमें क्लियरली एक पेपर पे ऑब्टेन होती है। तो इस तरह के काम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सॉल्ट है दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। दिस इज अमोनियम नाइट्रेट and this ammonium nitrate is used in making explosives। एक्सप्लोजिव्स को बनाने के लिए हम बेसिकली इसका यूज करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट सॉल्ट जो कि कॉमनली हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एलम। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज K2SO4 dot Al2SO4 thrice dot 24H2O. This is the alum. Its chemical formula is this, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में एलम का केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछते हैं। इस एलम का यूज हम करते हैं किस लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए हम बेसिकली एलम का यूज करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे सॉल्ट्स हैं हमारे पास डेली यूज के, जो कि हम अपने डेली वेयर में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये सारे जो सॉल्ट्स हैं, इन सॉल्ट्स को हमें इसी चैप्टर में डिटेल पढ़ना है, जिसमें हम इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसलिए हम इनके यूजेस को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इनको हम डिटेल में इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आपको एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स के यूजेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। थैंक यू वेरी मच।